तो रंगराज, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो अच्छा होगा। प्लीज स्टार्ट। Good morning, sir. So this course started for me little kind of emotional start because my uncle was. Sir, is it okay if I say something? If I share a little bit, or it is time consuming? Yes, it is okay. Yes, it is okay. Okay, okay. So my uncle was a homeopath, practicing Hahnemannian homeopathy as per his limitations and knowledge. But he introduced me to homeopathy, and I studied homeopathy because of him. But after finishing my college, I went on to expose to many schools of thoughts, as I before shared. I was not practicing as per guidance of my uncle. Though we were practicing in the same clinic, I felt like he's practicing at very like kind of low level, like only particulars, only what organ affinities and symptoms related to that. That's what I felt. But he has good results compared to all practitioners in Davangere. He had very good results. Some of the marvelous results I saw, but still I felt like something. My mind was like we have to prescribe on holistic man, on not a disease-oriented prescription. It should be a man or a man as a whole. These were the ideas I had because of the influence of many teachings. So it was the case, and I was almost practiced 12 years like that. My uncle was a gentleman. He never interfered in my prescriptions or practice. Though he had practice of 30 years, he did not interfere in my prescriptions or ideas. I used to attend many seminars, sometimes yearly, more than 15-20 seminars all over India. But still, he did not say anything. But slowly, when time came in last 2019, I started analyzing or kind of looking at my cases, like what are the cases, what I'm doing in my practice, like why the cases are not so doing well, why the cases are like, some cases are like extremely doing well, some cases of extremely not doing well. There is so much of people are living after 3-4 months of my practice, means taking treatment from me, they are leaving. So just I want to give a break, and I want to understand what's happening in my clinic or in my practice. So me and my wife together, we sat and we were looking at the cases, and we found that the cases were okay. Our practice is like moderately okay. That some cases are coming, we are treating at some level like sensation or predictive or something. Solid base is not there, I felt, because some prescriptions were like extremely on hanging on something. Some prescriptions were like there is no solid base for it. So then I was searching. In that search I was seeing in YouTube. Then I came to know, I was seeing suddenly YouTube of Dr. Yashwant Rao's on 2 minutes, just 2 minutes YouTube clip. Then it was so shocking for me, and I felt so
that was eye opener for me. The truth what in that clip was there, it touched me. So I go on searching for Virgin Homeopathy. Almost all the at the September to October 2019, I was searching almost. I think I have seen almost all YouTube videos of Virgin Homeopathy, like Dharmender's or Dr. Yashwant's. So I felt like every video as an eye opener, like many my ideas were shattered. So I thought, why not? I will inquire about it. Then I spoke to Dr. Yashwant sir. Then he gave me, even first talk only, he gave me so much insight, and then I thought I was joining. I thought of joining this course. Then I spoke to Dr. Sachin Mistry, because I was seeing the feedback of in YouTube. I was seeing feedback of this course from Sachin Mistry and Dr. Praveen Karkare's feedbacks were very impressive, I felt. So I thought I'll talk to them. Then I spoke to them. I think 3 or 4 members I spoke. All were of the same opinion that this is the must-do course. So I felt, let me do it. Slowly, then I started looking at my uncle now, because now I felt what I was doing mistake and what he was doing correct. But it was sad that the day November 2nd, I started this course. I was entered into this course of Hahnemanian original teaching. That day night, he expired. I think maybe Dharmender sir maybe remember. I took his at last minute, like death times before, just few minutes before, I asked his help. Because I tried so many things. Evidently, it was like he was ready to leave his body. So there was a huge emotional impact on my life. Also, I felt like this was the message by my uncle silently. Like when he was doing Hahnemanian Homeopathy, I was not doing. But when he's not there, I'm following his footsteps. Like he was like mentor for me. So I felt okay, this is the message from my uncle's life and practice. So let me do this course. So this is how I started. So this is why and how I joined this course. So for the first question, what I got, my first impression of this course is I am exposed to many schools of idea, like even from outside of countries. Like I have done a dynamic school, of course. Then I have seen Vitolkas, a little bit of Vitolkas. Then many courses like like foreign doctors, but nobody has promoted Dr. Hahnemann as in his pure form of teachings. So this is the first kind. This is the first of this kind. This is a first effort in homeopathy in recent, or I don't know, before, in these times, which gives you a pure form of Hahnemanian teaching and its greater understanding and utility of it. So when it is the first of its kind, so that itself is to be respected a lot. There may be some drawbacks or something, maybe, I don't know. But I feel this first effort should be great effort. Means is already a great effort. So this is the ongoing process. I feel like this we will, I think in future we will refine it more and more, and maybe more approachable to the
forthcoming students. This is an ongoing process. Since it is the first of its kind in the world, it's very good. Also, one more thing, for coming to the first point, like what I got from this course, like on this 6 months, the direct and first impact, I think most of the students or the course will agree, that it breaks many wrong ideas. Like you will be exposed to a complete truth, like you are in a dark room and the light comes and the dark vanishes. So that's why I felt like first thing is the course, what this course do to you. This course does, like first few lectures only, it breaks many of our ideas, many of our what we got from many stalwarts or so this happened to me also. It was like many of my basic ideas, like as I shared before, I was in like man as a whole, we have to treat man as a whole. This was the biggest idea I had. That was broken first. No, it's not like that. It is what Vital Force choose to express at this moment, which is bothering for the patient, is the first thing to be attained. This was the learning. So and many ideas of repertories, many ideas of negative prescriptions, or so much emphasis on mind. These were, when your all mistakes are cleared, then what is left is a pure understanding that will guide you. I feel like what it gave me, it broken many ideas. Then what remained was the pure understanding of clinical and classical Hahnemannian homeopathy, which guiding me. So that's it. What I got broken. It shattered my ideas and exposed me to a plain truth of Hahnemannian teaching. So which is a guiding light at present in my practice. So when errors are less in your practice, obviously your results are good. So that is evidently we seen, like me and my doctor, my wife Priya, we was analyzing like what is this last 3 months, how is our practice, like any changes. So I'll tell you, hope I'm not taking much time, but I will tell you, I am doing since 12 years I am doing a village clinic at my village. Very it is in the Andhra border, very remote village, very less population and no bus facilities or nothing, very so since my heart was in, since my college days, my heart is to practice in rural. So since 12 years we are practicing there. I see average of before 100 patients in 4 days, 90 to 80 to 100 patients 4 days, average 25 patients per day. So in this, after applying the gym, I mean VHSC ideas, also LM potencies. You can't imagine, like it's now I treat almost 150 to 160 cases, almost 60 patients are increasing. It is every month, like last 3 to 4 months we are treating almost 160 patients. So it's huge evident, like it's not only a change in my understanding level, also a
prescribing level and also in practice clinical level. About economical, I'm not interested to speak about that one, because if you do a good practice, obviously you get good patients, good number of patients. Obviously, it is a byproduct. Economy is a byproduct of good practice, I feel. So if you do a good practice, then it's inevitable that you will get more money. So it's not about money for me. Like for me, the priority is I want to see more rural kind of cases to just to help them. Like I feel good about doing that. So it was. I feel like this was personally a great benefit, which helped me. Which helped me in my village clinic. So I'm so happy about it. So about coming to the, so this is what I got. Still more, I think at present I could not. I may I can say a little bit more, because systematically I can say many points. But at present, this is the main core of what I would like to say. So what it lacking, or this course lacking, as I said, when it is a first of its kind, always the first efforts will have many things to be refined. So I think it don't lack anything, but I think it should be redefined or refined. Like one of the idea I felt, my solution for this may be wrong, I don't know, but it's my humble solution or suggestion. Like this course should be like divided into parts and should be given as a, for example, chronic prescribing. This is as a complete pack, like of not as a complete 6 months course, but only acute. What according to Hahnemann, this acute, only acute courses, because I have seen if it's maybe helpful for you, the Dr. Andre Saini from Canada, he does that Hahnemannian way of acute prescribing, though he is not so much not doing Hahnemannian, but 80% he is Hahnemannian. Is more of Lippe and kind of. So I think that doing well, like only acute prescribing, then only chronic prescribing, only one-sided disease, only mental diseases. 6 months course should be there, but also to attract or to go into more and more students. If we split this as a separate, not and ultimately what they does, if they attend one part of this acute prescribing, then they will go for chronic, then they may definitely they will come to attend the 6 months course. It is like doing one graduate and higher graduate, like that. Because I feel there may be more students and there may be struggling beginners who cannot afford to, and they may think it is they cannot afford. It's obviously it is a very good course. It's whatever money we put is always a beneficial. But as a beginner, they don't understand the value. They will look into their own issues of economy, and because they are the beginners, their mind will be about the economy, not about the benefit of the course, because they know there are many courses available. So they will see it is another course. We cannot, by one word, we cannot say to them like it is a great course, and they won't understand it. So I feel like if you split the course, or I mean, if we have separate like this, and also then they may join into a higher course or 6 months course. I feel that will open you more gates to 6 months course. This is my, just I felt. Because two of my friends, why I am saying this, because it's not by my idea. Two of my friends, when I suggested this one, they wanted to do, but they have issues of like, it's 50,000, something like they speak. Then when it comes to money, we cannot so much push them.
So I asked them to join this last webinar, one day webinar of chronic prescribing. They were convinced, like, yeah, we will do it in future. But the initial, if they don't attend that webinar, initially they may not interested in 6 months course. So something to convince them, or like if we put you attend this acute prescribing, or if you attend this chronic prescribing, that may open their minds. Yeah, this is a must do course. They may attend it. So this is my humble suggestion. Maybe I'm totally wrong, completely wrong. I don't know, but this is what I felt. I think apart from this, personally, I would like to thank firstly Dr. Yashwant Rao, because when I spoke to him in phone in October, it was like his words were like so much impacted on my understanding. It was like he was asking few questions to kind of which rekindled my thought process. Then I felt I must learn from him. And I was not knowing Dr. Dharmendra at that time. So first I would like to thank Dr. Yashwant Rao sir for I think somehow I felt the connection is something because of him, his video and his talk. I entered into this class, and I will be eternally thankful to Dr. Yashwant Rao sir for his great understanding of his classes, his understanding of organic living or alternative living ideas, and of some of his almost all of his videos are good, but some of the wonderful videos I heard kind of about the laboratory investigations, understanding, and all, really great. So I'm so much thankful to that. Then coming to Dr. Dharmendra sir, he is like fire ongoing, like no other words to say about him, because his teaching is very straight, no compromise, like do it. So I love that. Though I very hesitate to talk to him because of his, I don't know, I cannot say my own ideas too, because he's so straight. I'm little shy to talk to face such a fiery person. But it is a need of his teachings are must, and his depth, still I feel like 6 months are not enough to explore the depth and understanding of Dr. Dharmendra, and I think more to come. And I am saying on this moment, if any works I am ready to do for Dr. Dharmendra and Dr. Yashwant Rao for the betterment of animal in teaching, please give me anything you would like to, sir, because I am okay with it. I think I took a long time. Thank you, sir. Thank you so much for the entire 6 months course. It has made a great impact, and in practical level, in all levels, in understanding level, everything. And one more thing is, I personally is not to give you a great feedback. I must be also a good student, because I don't have that, because many of assignments are not yet finished. So I feel like it's I should be a good student first, I feel like. So we have many lacking. I have many lacking in doing many things in this course. It's the student who utilizes the course, how much ever it's a good course. It's the student who utilizes it to greater level. I think I am lacking in that. So it's not about the course, it's about the student, I feel. Thank you, sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैं तो नहीं कहूँगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए ही हूँ क्योंकि दोनों ही मीठी छुरी हो जाए तो घाव तो कर जाती हैं, पता नहीं चलता। डॉक्टर स्टूडेंट हमेशा कूल माइंड रहते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से अगर फायरिंग होगी तो स्टूडेंट भाग जाएंगे।
ट्रेनिंग नहीं लेंगे। कभी कभी क्या होता है, लोगों के लिए लर्निंग टीचिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है अपने टीचर का। मुझे अपने स्टूडेंट्स में कमियां दिखाई दें ये अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक ऐसा लगता है कि वो रिमूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनको इस बारे में कोई कंप्रोमाइज करने के लिए या हम कंप्रोमाइज कर लें, उन्हें करना चाहिए। तो इसके पीछे सिर्फ इसकी क्लियर इंटेंशन है कि जैसे आपने कहा कि कोर्स महंगा है, लोग कन्विंस नहीं होते। किसी को ये कन्विंस करने के लिए कोर्स क्रिएट नहीं किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, किसी को कन्विंस करने के लिए कोर्स नहीं क्रिएट किया गया। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, ये मुझे जो मिला वो आपको देने के लिए ये किया गया। जिनको कन्विंस करना होता है, ऐसा तरीके से हम ये कोर्स को लेके नहीं गए किसी पे भी। हमने एजुकेट करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि ये एजुकेट करता है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, आपके बताए हुए फीडबैक से लोगों को लगता है कि आपका फायदा हुआ है, तो लोग आते हैं। कल मैं आपको एक मैसेज बताऊं, ना तो हम उसे जानते हैं, ना ही हमारी कोई टीम जानती है उसे। आप लोग जो बोलते हो या जो भी फीडबैक देके जाते हो, शायद उसी के परिणाम है वो कि कैलकाटा से डायरेक्टली मैसेज आया कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है आपका। कैलकाटा में होम्योपैथी इनिशिएट होती है, वहाँ का व्यक्ति कहता है कि मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है डायरेक्टली। कुछ इफ एंड बट नहीं, सीधा शेड्यूल पूछा है और फीस पूछी है। और आप ये भी देखोगे कि न्यूयॉर्क से भी क्वेरी है। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली इसे कैप्सूल फॉर्म में बनाया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे किया जा सकता है। बट ये दूसरों को सेटिस्फाइड करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमेशा हमने अपनी पूरी टीम को बोला है कि सेल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सर्विस। अगर हम चाहें तो सेल बढ़ाई जा सकती है, जैसे लोग करते हैं कॉलेज में टाई अप करके, कमीशन बाजी शुरू करके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे सेल्स बढ़ाई जा सकती है। बट उन्हें कैटर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने हर वीक आपके साथ लगभग 2 घंटे बिताए हैं। 26 दूनी 52, 53 घंटे, 54 घंटे के आसपास आपके साथ शेयर किए। हमने जो भी सेकंड बैच तक जो भी क्रिएशन किया था रिकॉर्डिंग से, कुछ एक तो 4 रिकॉर्डिंग चेंज हुई है, बाकी सेकंड बैच से जो कुछ रिकॉर्डिंग्स थी वही सब आपको असाइन की जा रही है। अब हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको, एंड इंग्लिश बैच की भी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको ताज्जुब होगा, हमने शुरू में सोचा था कि 3rd बैच 4th बैच से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, बट हमने जब देखा अपनी सारे लाइव डिस्कशंस को, तो हमने देखा कि फाइनली ऐसी कोई चीजें आए जो हम अभी भी नहीं करने, तो बार बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने 11 बैच इससे निकल जाएंगे, मतलब 9th बैच आपका कंप्लीट हो रहा है, अब रिकॉर्डिंग्स हो रही है। लगभग 9 से 10 बैच निकलने के बाद हो रही है, कि जिससे कि हमें बार बार चेंजेस ना करने पड़े। कम से कम 10 बैच तो और निकलें जो रीस्ट्रक्चर से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि देयर बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमारे पास टीम नहीं है, लिमिटेड पीपल्स हैं हम। या जो लोग यहाँ से ट्रेंड हो जाते हैं तो शुरू में तो उनके पास वर्क नहीं रहता, बट जैसे जैसे वो ट्रेंड हो जाते हैं, प्रैक्टिस में उतरते हैं, वो खुद बिजी हो जाते हैं और उनका टाइम मांगे तो
या हम उन्हें कुछ काम असाइन करें तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो करना नहीं चाहते ऐसा नहीं, उनकी टाइम अब उतनी बचती नहीं। कोर्स टाइम में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब उनके पास टाइम होता है मेरे लिए कुछ करने के लिए, या कोर्स या होम्योपैथी के लिए कुछ करने के लिए। बट जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो वो धीरे धीरे बिजी होते चले जाते हैं, और एक ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के 6 मंथ तक ही वो ऐसे रहते हैं कि वो कुछ मदद कर सकें, नहीं तो बाकी। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं ये नहीं लगता कभी भी। मुझे ये लगता है कि शायद वो बिजी हैं। मेरे साथ अभी भी मैं यशवंत और मेरी बाकी टीम से हमेशा करता हूँ कि हम लोग अभी कैटरिंग जो है सेकंड बैच तक करते थे, वैसे कैटरिंग नहीं रही अभी हमारी। क्या था, सेकंड बैच, फर्स्ट बैच में 3 स्टूडेंट थे और सेकंड बैच में 14 स्टूडेंट थे, तो हमारे पास पीपल्स कनेक्टिंग ज़्यादा नहीं थी। हमारी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि मतलब सिस्टमाइज थी, अच्छी थी, बट ऐसी नहीं थी कि हम बहुत बिजी थे। अब आप ताज्जुब करोगे कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग मिल करके किसी न किसी 4-5 लोगों के रोज कोई ना कोई तकलीफ रहते हैं और उनकी कोई ना कोई मदद करनी ही पड़ती है। एंड देन जो फोकस्ड कैटरिंग होती है कि पहले ऐसा होता था कि मैसेज आया, मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, नहीं हुआ तो मैं कॉल कर लेता था। अब ऐसा नहीं रह गया। मैं पहले सेकंड थर्ड बैच तक मैं ऐसी कैटरिंग करता था कि मेरे को 6 मंथ में हर स्टूडेंट से कम अगर किसी से मुलाकात नहीं हुई तो 4 से 10 बार बात तो हो ही जाती थी फोन पे। तो मेरे लिए भी कैटरिंग का इशू है, क्योंकि हमारे और यशवंत के ही पास सारी चीजें आती हैं और वो हमें अपने टाइम नहीं है, हमको टाइम तो बहुत है, अपनी ओपीडी भी मेंटेन करनी है, बैचेज भी चलाने हैं, रिस्ट्रक्चराइजिंग करनी है, चेंज करनी होगी। हमारे पास बहुत फाइनेंस नहीं है कि हर एक चीज के लिए बिठाया जाए, बट फाइनेंस से लोग बिठाए जा सकते हैं, स्किल नहीं क्रिएट की जा सकती उनके अंदर जो अंदर से आती है। अंदर से जब तक स्किल नहीं है, मैं बहुत बार काम देता हूँ और वो एज पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, एज पर क्वालिटी जो एक्सपेक्ट होती है स्टूडेंट्स के साथ वो नहीं होती, तो मैं वैसा ही हूँ जैसा आपने कहा, मैं तुरंत वो काम विड्रॉ कर लेता हूँ। कारण ये नहीं होता कि मैं उनसे नाराज होता हूँ, कारण ये होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को वो करके जो मुझे देंगे उसमें मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तिबारा करना पड़ेगा, मेरा टाइम और ज्यादा जाएगा, क्योंकि फिर मैंने उन्हें एजुकेट करना है और फिर उसके बाद उसमें जो कमियां हुई उन्हें बतानी है। उससे बेहतर लगता है कि मैं खुद ही कर लूं। चीजें जो होती हैं देखने और समझने का नजरिया ही होता है। मैं हमेशा ये कोशिश नहीं करता कि आपको सब समझ जाए, पर मेरे को ये कोशिश रहती है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो देखने का नजरिया है, वो हैनीमैन की तरह हो जाए। आप खाना पूर्ति करने लगते हैं जब काम को, तो आप अपनी जो फुल अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई नहीं करते। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप खाना पूर्ति कर ही नहीं सकते। आप कोई काम दिया सर ने इसलिए वो करना है, ये फीलिंग आ ही नहीं सकती। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इनसाइट क्लियर होती है, इंटेंशन भी क्लियर होता है, या तो आप कोई पे शुरू में ही डाउटफुल हैं तो आप पूछना मांगता है कि सर मुझे ये जो काम दिया गया है इसका इनसाइट, इंटेंशन, आउटपुट क्या चाहिए ये पहले बता दो। बट अगर हमने दिया और उसके बाद वो करने लगे सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर, फिर वो ऐसा लगता है कि ये या तो करना नहीं चाहता इसलिए ऐसा काम कर रहा है, या इसने समझा ही नहीं है। तो हर बैच में अच्छे से अच्छे सभी अच्छे ही होते हैं, बट वो मेरे लिए अच्छे साबित होते हैं या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो मैं काम दे रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, उन्हें उनके तरीके से जीने देना चाहिए।
हर बैच में रंगराजन सर स्टूडेंट्स आते हैं, काम मांगते हैं, काम दिया जाता है। हमने अपने एक स्पेशल बिजनेस कोर्स से एक चीज सीखी थी जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। लोग मिलेंगे, बहुत क्लोजली एंड फास्टली करीब आएंगे, एंड सबके इंटेंशन अलग अलग होंगे आपके पास आने के। कुछ लोगों के इंटेंशन ऐसे होते हैं कि इनसे जितना भी इनके पास ज्ञान है वो ले लिया जाए और फिर इनसे दूर हो जाया जाए, और ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा होता भी है, हर बार होता है। जब तक हम फ्रीली कैटरिंग के लिए अवेलेबल हैं वो हमसे हैप्पी है, जब तक हमसे उन्हें फायदा होता है तब तक वो हमसे कनेक्टेड है, एंड जैसे ही ये चीजें नहीं हो पाती देन वो कभी महीने साल में भी फोन नहीं करते। ऐसा भी है। हमें लगता है कि मेरे साथी, मेरा स्टूडेंट बहुत दिन हो गए मुझे बात नहीं की, तो चलो मैं बात कर लेता हूँ। तो एक्सक्यूज क्या आता है, सर आप बहुत बिजी हैं इसलिए फोन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैसेज कर लेते। ऐसा है, बट ये कोई इमोशनली डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे। तो उन्होंने, हमारे कोच ने कहा कि ट्रू पीपल एंड जो सेम विजन एंड मिशन के साथ होते हैं उनमें आपका विजन एंड मिशन ट्रांसफर हो जाए तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ट्रू पीपल की सर्चिंग हमेशा बनती रहेगी। ऐसे लोग आएंगे, मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और फिर अलग भी हो जाएंगे। तो उसके लिए दुखी नहीं होने का, तो उनके लिए बोलेंगे इतनी जर्नी थी उनके साथ, न्यू ट्रू पीपल्स की सर्चिंग जारी रखने का। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ कुछ मिशन के लिए जुड़ेंगे, यानी आपके मरने के बाद भी, होल लाइफ नहीं। होल लाइफ तो क्या है कि मेरी लाइफ आज है कल नहीं है, बट जो सच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, जो सच में मिशन से जुड़ते हैं, वो अपने गुरु के जाने के बाद भी उस मिशन में लगे रहते हैं। इस बात की चिंता नहीं होती है। तो होल लाइफ मतलब तो ये है कि मैं हूं तब तक है, परंतु मिशनरी पीपल्स वो होते हैं कि व्यक्ति चला जाए तो भी मिशन ना छूटे। इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा कर रहा हूं जो ग्रेट हो, जहां पे हर व्यक्ति लीडर बन सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, लास्ट फॉर्मल डिस्कशन इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ। हमने ऑर्डर रेस्टोरेंट ने, हमारी टीम ने एक फाउंडेशन बनाया है, पता नहीं कौन सा नाम अप्रूवल होके आएगा। 3 नाम दिए गए हैं, वरहम फाउंडेशन, SHS फाउंडेशन, सैमुअल हैनिमैन होम्यो साइंस फाउंडेशन एंड एक सेरिमन फाउंडेशन। 3 नाम मांगे जाते हैं। पहला सैमुअल हैनिमैन होम्यो साइंस फाउंडेशन दिया गया, इसी उद्देश्य से दिया गया कि जो लोग विजनरी हैं, जो मिशनरी हैं, वो इस सिस्टम में आकर के जुड़े और इस सिस्टम को लेकर के आगे जाएं। उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है और वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। एंड देन ये होम्योपैथी की जो एजुकेशन है, हमें कन्विंस नहीं करना है सर, कन्विंसिंग सही वे नहीं है। हम फैमिली मेंबर नहीं है, एक दूसरे को के रिलेटिव्स नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें मनाना है। हमें किसी को नहीं मनाना है, हमें सिर्फ सच्ची एजुकेशन क्रिएट करनी है। जिसके दिल को लगे कि वो दूर ही नहीं देखता। मैंने बोला ना, कलकत्ता एंड न्यूयॉर्क दोनों बहुत दूर है अपने पुणे से। ये भी डेफिनेट है कि सबसे ज्यादा पुणे में ही स्टूडेंट है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि पुणे के लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, बट पुणे तक के लोगों तक पहुंचने के बाद भी बहुत सारे पुणे के, मैं तो 1% भी नहीं पुणे के डॉक्टर्स को कवर किया हूँ। 99% मैं सबसे पास हूँ। मेरे बगल में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट मैं उन तक नहीं पहुंचा। बट इतनी दूर से भी कोई क्वेरी आ जाती, भले ही वो स्टूडेंट बने या ना बने, ये तो फर्दर है, पर अच्छा लगता है कि मैंने तो उनके साथ कभी बात नहीं की, उन्होंने मेरी कोई पोस्ट, मेरा कोई वीडियो सुना और उसके बाद उन्हें कनेक्ट किया कि नहीं ये सही है। मैं ताज्जुब करता हूं कि अगर हम जिस तरीके से YouTube और Facebook पे इनके फॉलोअर्स हैं लोगों के, अगर हम इस सिस्टम को फ्रीली अवेलेबल करा दें
तो ये सारे के सारे बिजनेस कोलैप्स हो सकते हैं जो चल रहे हैं। तो आप ताज्जुब करोगे मैं कैटरिंग नहीं कर पाऊंगा उनको। अगर हम कैटरिंग कर पाए उनको, जो लोग हमसे जुड़ेंगे, अगर हम बहुत सब कुछ फ्री कर दें बट जो क्वेरीज आएंगी उनको टाइम पे सॉल्व ना कर पाए, तो ये वैसा ही होगा कि दिखने में तो बहुत अच्छा है, सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ फंस गया किसको पूछे, और आप अवेलेबल नहीं हो पाओगे। क्यों? फाउंडेशंस या फ्री चीजें करने में क्या होता है कि जैसे अब आपके लिए कोई अचीवमेंट करने को नहीं रह गई, देन आप फ्रीली अवेलेबल है, बट फिर भी आप कितने भी फ्रीली अवेलेबल हो, 24 घंटे से ज्यादा आपको दिए नहीं ईश्वर ने। आप फ्री सर्विसेज भी 24 घंटे से ज्यादा दे नहीं सकते किसी को। आप अपने टाइम की कमिटमेंट दे सकते हो, परंतु सबको कहोगे फ्री में आके करो ये सर्विसेज, लोग तैयार नहीं होते। क्यों? सबके परिवार है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कहने का ये मतलब है हमने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पता नहीं वो भविष्य में कहाँ तक जाएगा। हमें बहुत बार ये फील हुआ जो आपने कहा कि हमें इसे छोटे छोटे कैप्सूल में बांट दें, एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग के लिए, क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए, फीमेल प्रिस्क्राइबिंग के लिए, थायराइड, ये सारे चीजें, उससे क्या होगा? ये बात तो आप सही है, बट एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग में जब एक्यूट की बातें होंगी फिर वो क्वेश्चन आते हैं क्रॉनिक के, या ये सर कैसे, कहाँ से, इतने सारे रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब वो कनेक्ट करने की कोशिश की जाती तो वो पूरी एक्यूट में भी पूरी साइंस पढ़ानी पड़ती। फीमेल डिसऑर्डर लेके जाना है तो म्याजम से फ्री होकर के कोई बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि म्याजम की बात नहीं करेंगे और फीमेल डिसऑर्डर पढ़ा देंगे। क्रॉनिक पढ़ाएंगे तो भी इंटरकरेंट प्रिस्क्राइबिंग पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि एक्यूट कंडीशंस को कैसे डील करोगे क्रॉनिक में। मुझे कभी भी ये चीज जब मैं विस्तार से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिंगल पार्ट, ये बेसिक फंडामेंटल कोर्स है, इसके बाद जितना चाहो वो रिसर्च मॉड्यूल की तरह काम कर सकते हैं। सपोज दैट आप फीमेल डिसऑर्डर पे ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, फीमेल डिसऑर्डर पे आपको डिटेल स्टडी करनी है तो कोर्स तो बन सकता है, बट जहाँ पे फंडामेंटल सी क्लियर नहीं, 5.5 साल में क्लियर नहीं हुए, आपको एक्यूट में आपको अधूरी बात समझ में आई तो आप अधूरा ही जाके अप्लाई करोगे। इसलिए हम सब ने ये बहुत बार बात करने के बाद ये समझ में आया कि ये तो फंडामेंटल है, इसके बिना तो आपको ना तो साइंस की समझ बनती है, ना हैनीमैन सर की समझ बनती है, ना उनके थॉट प्रोसेस आपको आइडिया। मैं एक्यूट दूंगा अभी तो भी आपको वो हजम कितना होगा, आप डाइजेस्ट कितना, आज आप कोर्स समझते हो इसलिए एक्यूट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको समझता है, बट अगर ये कोर्स आपके दिमाग से निकाल लिया जाए तो आपको एक्यूट दिया जाए तो आप डाइजेस्ट है। इवन आप ताज्जुब करोगे कि जितनी भी कोचिंग के अलावा सेमिनार हुई है उसमें फुल जो लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं उनके सामने अगर कोई सेमिनार आती है तो उनको कनेक्ट होता है ईच एंड पार्ट, क्योंकि उनको रिपीट होता है। बट जिन लोगों को फुल कोचिंग, फर्स्ट कोचिंग भी, फर्स्ट सेमिनार भी फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ दी गई थी, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा था जो हमने वहां पे चर्चा नहीं किए थे। मतलब एक दिन में फुल आउटलाइन के साथ बात रखी गई थी, फिर भी लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था जिन्होंने समझा था। एंड देन फाइनली ये कहा कि सर आउटलाइन में तो ऐसा कोई चीज नहीं था जो आपने हमें पढ़ाया नहीं था जो सेमिनार के दौरान, और ये सारी जो थॉरो स्टडी डिस्कशन जो ये टाइम है, क्योंकि सेमिनार में इतना टाइम नहीं होता और उस समय सारे क्वेश्चंस आते भी नहीं दिमाग में, और अगर आ भी जाए तो हम कैटर नहीं कर सकते। तो इस बात तो टाइम की आ जाती है, जब टाइम को कनेक्ट किया जाता है तब वो हो नहीं पाता। मैं बोलता हूँ कि हमने अभी जो दिया था वो भी फुल पैकेज ही था, हमने सब तरीके से ये कोशिश की थी कि हर चीज कवर कर दी जाए, पर आउटलाइन ही थी, हम बहुत ज्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते उसमें। इवन हमने यहाँ पर ये जो ऑनलाइन सेमिनार हुई इसमें टाइम लिमिट थी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि अपनी बात रखने में कोई टाइम लिमिट है नहीं, क्योंकि अभी सेमिनार हॉल तो बुक नहीं किया कि 5:30 बजे क्लोज करके जाना है। तो हमारे पास एक फ्रीनेस थी, उस फ्रीनेस को हमने यूज किया
एजुकेट करने की कोशिश की, बट जिनको कनेक्ट नहीं होता उनको नहीं होता, उनको पूरा खोल के रख दो तो भी नहीं होता। ये जितने भी आप देखोगे, अगर अपने पास 100 स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 90 to 85 स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिशनर है, और वो कहीं ना कहीं से डिससेटिस्फाइड होने के बाद यहाँ आए। कुछ लोग डायरेक्ट कनेक्ट रेफरल के बाद आए हैं। दो ही तरीके के लोग ज्यादा हैं अपने यहाँ, डिससेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस से होने के बाद, सारे सिस्टम जानने के बाद लोग आते हैं। नहीं तो हमें कोई फर्स्ट प्रायोरिटी में चूज ही नहीं करता, या फर्स्ट प्रायोरिटी में जो चूज करते हैं वो डायरेक्ट रेफरल है, वो कहते हैं कि जाके ज्वाइन कर लो। एंड स्टूडेंट्स भी वो ही लोग आते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने डायरेक्ट रिकमेंड किया है। तो हम कोई मार्केट में अवेलेबल और बहुत नाम रोशन वाला चीज नहीं, पर जितनी भी लोगों तक ये बात गई है, उस व्यक्ति से जब बात करता है कोई कि तुमने कोर्स किया है तो कैसा लगा, तो डेफिनेटली भले ही किसी बात से हमसे नाराज भी हो कोई चीज को लेकर के, तो वो कहता जरूर होगा कि मेरा फायदा हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं कहते हो, ना नो कर देते हैं। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कोर्स को लेकर के। हम आपके फीडबैक्स को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, बट आप काट भी दिया, जैसे आपने फीडबैक दिया हमने काट दिया। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपका कोई दोस्त नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे डॉक्टर सचिन राजे के पास। डॉक्टर सचिन राजे रेफरल है अपने ही साथियों के। मुझे नहीं पता है कि उनको क्या अचीव हुआ है इस कोर्स में, वही क्वेश्चन